Welcome back to my channel JBR Online Classes. Like, share and subscribe my channel. So hello everyone, in this video I am going to discuss about functions. So this is a second video, that means second introduction video. For the first one please check the description box, the link will be there. So first, what is a function? Okay, so in the previous video you have learned about the relation. Okay, now function is a special type of relation. Function is a special type of relation, and the function word is derived from the Latin word that means operation. Clear? So suppose here A and B two non-empty sets, then a function f is a relation from A to B. Okay, that means A into B. If for each x belongs to A, there exists a unique solution y belongs to B such that xy belongs to f and f such that A to B. It's denoted by f such that A to B. अब इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया, अगर मान लो आपके पास दो सेट दिया हुआ है, ओके, सेट ए एंड सेट बी. नाउ सेट ए एंड सेट बी, इसको फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे. जो रिलेशन हमको यहाँ पर निकालना होगा, उस रिलेशन के लिए एक्स के ऊपर जो वैल्यू है, ठीक है, एक्स के ऊपर जो वैल्यू है, एक्स के ऊपर डिपेंड करके वाई का जो वैल्यू आएगा वो यूनिक होना बहुत ज़रूरी है. दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड or statement here in function, that is a unique element of B. Okay, a unique element of B. So now here is an example. Suppose f equal to 1 2 3 4, that means suppose here a set A has the element 1 and 3 and set B a element 2 and 4. Okay, then that means here fa equal to 2 and f3 equal to 4. So it's a function, because here every x, here for every value of x there will be a unique value of y, as here fa equal to 2 and f3 equal to 4. So 2 and 3 are two different values. But if f equal to 1 1 1 2, then it's not a function. Why it's not a function? Because as here f1 equal to 1 and f1 equal to 2, तो यहाँ पर देखिए f1 के लिए वैल्यू भी 1 है, f1 के लिए वैल्यू 2 हो गया. इसका मतलब यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है. अब दोनों की x ही वैल्यू है, x के ऊपर यहाँ पर, बट यहाँ पर y का कोई यूनिक वैल्यू नहीं है. ओके, एज देयर इज नो यूनिक y फॉर 1, क्योंकि 1 के लिए एक ही वैल्यू होना चाहिए. अब यहाँ देखिए 1 के लिए एक बार 1 हो रहा है, 1 के लिए एक बार 2 हो रहा है. सो y इज नॉट यूनिक हियर, दैट्स व्हाई इज नॉट कॉल्ड अ फंक्शन. तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यहाँ पर हम बोल सकते हैं एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन. क्लियर? बट एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन, एंड हियर इज द एग्जाम्पल. आई होप यू अंडरस्टैंड. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज इमेज ऑफ एन एलिमेंट. So image of an element, suppose here xy belongs to f. So this is the terminology we use in case of relation. Okay, and as I already said that every function is a relation, that means it's also a function. Okay, and f is also a relation, but generally we used write fx equal to y in practice. Okay, इसका मतलब अब ए भी लिख सकते हैं, कोई गलत बात नहीं है, बट फंक्शन के लिए हम एफ एक्स इक्वल टू वाई, ए वाला टर्म ही ज़्यादा यूज़ करते हैं. फॉर वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी, डेफिनेटली. सो दैट वाई इज कॉल्ड इमेज ऑफ एक्स अंडर एफ. इफ एफ एक्स इक्वल टू वाई, देन दैट वाई इज कॉल्ड इमेज ऑफ एक्स अंडर एफ एंड एक्स इज कॉल्ड प्री इमेज ऑफ वाई अंडर एफ. Okay, then x is called pre-image of y under f. Suppose here the example, as here f 1 2 3 4, that means here 2, for f1 equal to 2, so here 2 is the image, 2 is the image of 1, as well as 4 is the image of 3. That means here 1 is the pre-image of 2 and 3 is the pre-image of 4. Now next one, domain and range of a function. Okay,
सो पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं. लेट एफ बी अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, देन the set A is called the domain of the function. Now as I said before, every function is a relation. इसका मतलब जो वहाँ पर दिया हुआ था domain of range, तो वो सेम ही होगा domain of function में. The set A is called the domain of the function as well as in the relation. And the set B is called codomain. Okay, set B is called the codomain. So what is the range of F? That means the set consisting of all the images of the element of A under the function f is called the range of f. Okay, consisting all the images, this is the most important line here, consisting all the images of the element, and it is denoted by fa. So मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल क्रिएट कर रहा हूँ, एग्जाम्पल से आपको समझने में ज़्यादा आसान होगा. So let A equal to 1 2, okay, the two elements in set A, and B equal to 4 5 6. So here the function is 1 4 and 2 6. अब फंक्शन होने के लिए मैंने पहले ही बोला था फॉर एवरी x, एवरी डिफरेंट x देयर विल बी एवरी डिफरेंट y. सो 1 के लिए 4 और 2 के लिए 6, सो इट विल बी अ फंक्शन. सो f1 इक्वल टू 4 एंड f2 इक्वल टू 6. That means the domain of f will be 1 and 2. It's very easy. And codomain will be 4 and 6. So 4, 5 and 6 also. That means the set B. यहाँ पर लिखा हुआ है the codomain, the set B. So 4, 5, 6. It's the codomain. Okay, हो गया. Now range क्या होगा? Range of f will be only 4 and 6. 5 नहीं होगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है the set consisting of all images. अब यहाँ पर इमेज कौन सा है? 4 and 6 इमेज है. यहाँ पर 5 जो लिखा हुआ था सेट बी में जो एलिमेंट है 5 यहाँ पर इमेज नहीं हो रहा है. और यहाँ पर लिखा है सेट ऑफ ऑल इमेजेस ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ए. इसका मतलब ए के ऊपर डिपेंड करके जितना भी इमेज आएगा वो इमेज हो जाएगा आपका रेंज ऑफ एफ. तो यहाँ पर मुझे सिर्फ 4 और 6 एज इमेज मिल रहा है, 5 नहीं मिल रहा है. इसका मतलब रेंज हो गया 4 and 6. ना यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखना ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट चीज़ है. जैसे मान लीजिए यहाँ पर रेंज ऑफ एफ यहाँ पर 4 and 6 है और यहाँ पर 4 5 6 इन कोडोमेन. दैट मीन्स डेफिनेटली यू नो दैट 4 6 इज द सबसेट ऑफ 4 5 6. ओके, 4 6 इज द सबसेट ऑफ 4 5 6 क्योंकि एवरी एलिमेंट कंसिस्ट इन दिस सेट. ओके, और बिलोंग्स टू इन दिस सेट. So range of a function is always a subset of codomain. Okay, very important notes. Range of a function is always a subset of codomain. Now the next thing, that is type of a function. So there are total 5 types of function. Okay, so let's discuss about the first one. 1 function. The function f such that a to b is called 1 to 1 or 1 1 if and only if different element of a have different images in b. Okay, different element of a have different images in b. That means if and only if a1 not equal to a2, that imply if a1 not equal to a2. ओके क्योंकि देखिए अगर एफ ए वन इक्वल टू हो गया आपका कोई बी वन हो गया, एफ ए वन इक्वल टू बी वन हो गया और एफ ए टू भी आपका बी वन हो गया, तो वो देखिए 1 1 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए हैव डिफरेंट इमेजेस इन बी, क्योंकि बी का जो एलिमेंट है वो सेम नहीं होगा. जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है सच एज एफ इक्वल टू फंक्शन a2 b3 c3. यहाँ पर देखिए ए के लिए इमेज हो रहा है 2, बी के लिए इमेज 3 एंड सी के लिए इमेज 4. देखिए हर एक में अलग अलग इमेज दिया हुआ है और यहाँ पर भी अलग अलग प्री इमेज है. इसका मतलब पी इमेज भी आपका डिफरेंट होगा और इमेज भी आपका डिफरेंट होगा. दैट मीन्स यू ओके, तब आप बोल सकते ये वाला 1 1 फंक्शन हो गया. सो इफ़ a2 b2 c3 अगर फंक्शन लिया और फंक्शन में यहाँ पर आपका ऑर्डर पेयर है a2 b2 c3. अब यहाँ पर देखिए a प्री इमेज के लिए इमेज हो रहा है 2
और बी प्री इमेज के लिए यहाँ पर भी इमेज 2 हो रहा है, तो यहाँ पर तो कॉन्ट्रडिक्टरी हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, जैसे मैंने यहाँ पर बोला था डिफरेंट इमेजेस इन बी, बट यहाँ पर देखिए दो सेम इमेजेस आ गया, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है. ओके, सो इट्स द कॉन्ट्रडिक्शन. दैट मीन्स दिस वन इज नॉट अ एग्जाम्पल ऑफ वन फंक्शन. क्लियर. अब एक चीज यहाँ पर बोल देता हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी. कैसे हो गया? अगर मान लीजिए यहाँ पर पहले इक्वल टू होगा. ओके, मान लीजिए इक्वल टू, ए में 2 एलिमेंट है, बी में भी 2 एलिमेंट है, तो आपका देखिए 2 प्री इमेज है और 2 इमेजेस है. तो पहला वाला प्री इमेज के लिए पहला वाला इमेज हो गया, दूसरा वाला प्री इमेज के लिए दूसरा वाला इमेज हो गया. इसका मतलब इक्वल टू हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. अब मान लीजिए लेस देन. ओके, अब लेस देन मान लीजिए ए आपका हो गया ए इक्वल टू मान लीजिए 1 2 एंड बी इक्वल टू आपका हो गया मान लीजिए 3 4 5. ओके, यहाँ पर लेस देन ले लिया मैंने. सो 1 के लिए 3 हो रहा है, अब 2 के लिए 4 हो रहा है. ओके, सो डिफरेंट हो गया. अब 5 होना है कि नहीं होना है वो हमको देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों का जो कंडीशन दिया हुआ था वहाँ पर लिखा हुआ है फॉर डिफरेंट एलिमेंट ए हैव डिफरेंट इमेजेस बी. अब बी पे एक नंबर अगर नहीं हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो कंडीशन में यहाँ पर दिया ही नहीं है जो बी का हर एक एलिमेंट यहाँ यूज़ होना ज़रूरी है. इसका मतलब बी का हर एलिमेंट इमेज होना ज़रूरी है, कहीं पर दिया नहीं है. सिर्फ आपको क्या करना है, डिफरेंट एलिमेंट्स लेना है जिसका डिफरेंट इमेजेस आएगा. अगर मान लीजिए अगर ए वाला हो गया आपका, दिस वन इक्वल टू ए हो गया और दिस वन इक्वल टू बी हो गया, दैट मीन्स एन ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी हो गया. सो यहाँ पर लिखिए 3 के लिए 1 आएगा, 4 के लिए 2 आएगा. अब 5 के लिए कोई भी इमेजेस नहीं है आपके पास. फॉर एलिमेंट 5 आपके पास कोई इमेजेस यहाँ पर नहीं है, बट यहाँ पर लिखा है डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए हैव डिफरेंट इमेजेस इन बी. यहाँ पर बी में इमेज होना ज़रूरी है और वो भी डिफरेंट होना चाहिए. सो 3 के लिए अगर 1 है, 4 के लिए अगर 2 होगा, तो 5 के लिए तो यहाँ पर कुछ ना कुछ होना ज़रूरी है, बट यहाँ पर कुछ नहीं है. सो दैट मीन्स एन ए लेस देन इक्वल टू एन बी, कभी भी ग्रेटर देन नहीं हो सकता है. आई होप यू अंडरस्टैंड. नाउ नेक्स्ट वन, मेनी वन फंक्शन. Okay, the function f such that a to b is called many one if and only if 2 or more elements of a have the same images in b. सेम इमेजेस इन बी, इसका मतलब लास्ट वाला जो मैंने प्रॉब्लम जो मैंने डेफिनेशन किया था वहाँ पर जो 1 1 फंक्शन था, 1 1 फंक्शन में मैंने एक कंट्रोडिक्शन लिखा था, जहाँ पर देखिए ए के लिए 2 आ रहा है और बी के लिए भी 2 आ रहा था. इसलिए मैंने बोला था ए वाला 1 1 नहीं है, बट वही वाला कंडीशन देखिए यहाँ पर आ गया. ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स ऑफ ए हैव सेम इमेजेस. अब यहाँ पर देखिए ए के लिए भी 2 इमेज आ रहा है, बी के लिए भी 2 इमेज आ रहा है. तो ए वाला हो गया 1 1 फंक्शन. ओके, इसका मतलब हो गया दैट मीन्स मेनी वन फंक्शन. दैट मीन्स मेनी वन फंक्शन इज द ऑपोजिट ऑफ 1 1 फंक्शन. क्लियर. अच्छा, और एक बात मैं बोल देता हूँ, 1 1 फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड इंजेक्टिव फंक्शन. रिमेंबर दैट. दैट मीन्स द 1 1 फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड द इंजेक्टिव फंक्शन. Now the next one, third one, onto function. A function f such that a to b is called onto function if each element of b is the image of at least one element of a. अब is the image of b, each element, okay, ये वाला वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. each element of b इज द इमेज ऑफ एटलीस्ट 1 एलिमेंट ऑफ ए. यहाँ पे मैंने शॉर्टकट लिखा है, ए लिखना जरूरी है, IMGE लिख दिया. ओके, सो यहाँ पर ध्यान से देखिए, ईच एलिमेंट ऑफ बी, इसका मतलब बी का जो एलिमेंट है, बी का हर एक एलिमेंट यहाँ पर इन्वॉल्व होना बहुत बहुत ज़रूरी है. जो मैंने यहाँ पर जो 1 1 डेफिनेशन मैं समझा रहा था, तब मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था. उस एग्जाम्पल में अब देखिए एक बी का जो इमेज था वहाँ पर एक एलिमेंट वो जो छूट रहा था हमसे, बट मैंने बोला था वो वाला कंडीशन वहाँ पर इम्पॉर्टेंट, इसका मतलब ज़रूरी नहीं है, बट
ऑन टू फंक्शन में वो वाला कंडीशन यहाँ पर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दैट इज द रूल. ईच एलिमेंट ऑफ बी इज द इमेज ऑफ एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ ए. इसका मतलब बी का हर एक एलिमेंट यहाँ पर कवर होना बहुत ज़रूरी है फंक्शन में. जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल दिया है 1 2 3 4 एज द एलिमेंट ऑफ ए एंड 3 5 9 एज द एलिमेंट ऑफ बी. क्लियर? नाउ फंक्शन विल बी, दैट मीन्स ऑन टू फंक्शन विल बी 1 के लिए 3, 2 के लिए 5, अब 3 के लिए भी 5 और 4 के लिए 9. इसका मतलब देखिए यहाँ पर जो इमेजेस आया है 3 5 एंड 9. okay, that means all the elements are including in this function, that means all the elements of b including in this function. कोई भी एलिमेंट मुझसे छूटा नहीं है. 3 भी यहाँ पर है, 5 भी है, 9 भी है. समझ रहे हैं? ओके, सो दैट मीन्स इन ऑन टू फंक्शन देयर इज नो एलिमेंट इन बी विच हैज़ नो प्री इमेज इन ए. जो मैंने अभी बोला है वही यहाँ पर मैंने लिख दिया है. नाउ नेक्स्ट थिंग यहाँ पर समझेंगे, जैसे मैंने 1 1 फंक्शन में बोला था वो लेस देन इक्वल टू होगा. अब यहाँ पर देखिए एन ए ग्रेटर देन इक्वल टू एन बी होगा. अब मान लीजिए इक्वल टू अगर होगा, सो अगर इक्वल टू होगा मान लीजिए 1 2 3, सो 1 के लिए 3, 2 के लिए 5 एंड 3 के लिए 9, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर ग्रेटर देन होगा तब भी यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दिखा है. अगर मान लीजिए यहाँ पर लेस देन हो गया, अब लेस देन हो गया मान लीजिए यहाँ पर n 1 2 है, ओके, n 1 2 और यहाँ पर 3 5 है. सो इसके लिए 1 के लिए 3 होगा, 2 के लिए 5 होगा, बट 9 के लिए 9 जो इमेजेस यहाँ पर दिया हुआ है इसके लिए तो एक प्री इमेज यहाँ पर होना जरूरी है, बट यहीं पर कोई प्री इमेज नहीं है. ओके, दैट मीन्स 1 के लिए 3 हो गया, अब 2 के लिए 5 हो गया, अब 9 को होने के लिए तो यहाँ पर एक प्री इमेज होना जरूरी है. इसका मतलब देयर विल बी एन ए ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू एन बी. ओके, ये याद रखना जरूरी है. बुक में ए वाला पोर्शन नहीं लिखा होगा, सो दैट इज द इम्पॉर्टेंट. ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ नेक्स्ट वन, into function. The function f such that a to b is called into function if and only if there exists at least one element in b such which is not the image of any element of a, which is not the image of any element of a. इसका मतलब जो मैंने ऑन टू फंक्शन में बोला था वो वाला फंक्शन यहाँ पर काम नहीं करेगा, देखिए वो रूल यहाँ पर काम नहीं करेगा, क्योंकि मैंने ऑन टू फंक्शन में बोला था जब बी का हर एक एलिमेंट इंक्लूड होना ज़रूरी है. अब यहाँ पर देखिए मैंने 1 के लिए 4 ले लिया, 2 के लिए 5 ले लिया, 3 के भी 5 ही हो गया. दैट मीन्स 3 के जो इमेजेस है वहाँ ये पर 5 हो रहा है. बट यहाँ पर देखिए बी का जो एक एलिमेंट है यहाँ पर 6 दिया हुआ है. 6 ऑफ बी हैज़ नो प्री इमेज इन ए. 6 of b has no pre-image in A. That means the into function is the opposite of onto function. Okay, I hope it's clear. Now the last one, 1-1 correspondence. Okay, 1-1 correspondence, another name is bijective, and the onto function, another name of onto function, that is surjective. Okay, so 1-1 injective, onto function surjective, and this one bijective. A function f such that a to b which is both 1-1 and onto is called 1-1 correspondence. ओके, इसका मतलब 1-1 करस्पॉन्डिंग हम बोल सकते हैं उसको, उसी फंक्शन को जिसमें आपका 1-1 भी हो रहा है और ऑन टू भी हो रहा है. दोनों एक साथ होना चाहिए, ध्यान रखिए, दोनों एक साथ होना चाहिए. 1-1 भी होगा और ऑन टू भी होगा. अगर कोई भी एक सेटिस्फाई नहीं हो रहा है इसका मतलब वो बाइजेक्टिव नहीं होगा. जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है, सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सेट बी इक्वल टू 3 5 7 9. अब ऑन टू होने के लिए क्या ज़रूरी है? ऑन टू होने के लिए ज़रूरी है बी का हर एक एलिमेंट, दैट मीन्स बी इज़ द इमेज. सो हर एक इमेजेस का एक प्री इमेज यहाँ पर होगा. सो 3 के लिए देखिए 1 है, 5 के लिए 2 है, 7 के लिए मैंने 3 डाला है, 9 के लिए 4. सो ये वाला ऑन टू का कंडीशन सेटिस्फाई हो गया. अब 1-1 का सेटिस्फाई कंडीशन क्या था? 1-1 का कंडीशन था हर एक प्री इमेज का, हर एक डिफरेंट प्री इमेज का हर एक डिफरेंट इमेज होना जरूरी है. तो 1 के लिए 3 है, 2 के लिए 5 है, 3 के लिए 7 एंड 4 के लिए 9.
देखिए 1 2 3 7 सॉरी 3 4 दैट मीन्स ऑल आर द डिफरेंट प्री इमेज एंड 3 5 7 9 ऑल आर द डिफरेंट इमेजेस। सो यहाँ पर 1 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया, दैट मीन्स इट्स कॉल्ड अ बाइजेक्टिव फंक्शन। अब यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है एन ए इक्वल टू एन बी, इसका मतलब यहाँ पर लेस देन और ग्रेटर देन नहीं होगा। अब इक्वल टू जो हो रहा है तो ये मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है। अब लेस देन क्यों नहीं होगा, ग्रेटर देन क्यों नहीं होगा, उसको हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मान लीजिए पहले लेस देन हो गया, सो लेस देन होने के लिए यहाँ पर मान लीजिए 1 2 3 हो गया, 4 यहाँ पर नहीं है, तो 1 के लिए 3 हो गया, 2 के लिए 5 हो गया और 3 के लिए 7 हो गया। अब देखिए 9 का कोई प्री इमेजेस यहाँ पर नहीं है, तो 9 का अगर प्री इमेजेस नहीं होगा इसका मतलब ऑन टू फंक्शन सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगर ऑन टू फंक्शन सेटिस्फाई नहीं करेगा तो बाइजेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही होना जरूरी है। अब नेक्स्ट वन, अब मान लीजिए ए वाला आपका ग्रेटर देन हो गया। ओके, अब ग्रेटर देन अगर हो गया तो मान लीजिए यहाँ पर 1 2 3 4 है और यहाँ पर सिर्फ 3 5 7 है, 9 नहीं है। सो 1 के लिए 3, 2 के लिए 5 और 3 के लिए 7 हो रहा है। अब 4 के लिए, ओके 4 के लिए यहाँ पर कुछ नहीं है। अगर 4 के लिए मान लीजिए यहाँ पर 3 5 7 कवर हो रहा है तो इसका मतलब ऑन टू फंक्शन हो गया, बट 4 के लिए कोई तो यहाँ पर कोई इमेजेस नहीं है, इसका मतलब 1 1 फंक्शन यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, क्योंकि 1 1 फंक्शन का कंडीशन था फॉर एवरी डिफरेंट प्री इमेज ऑफ ए देयर विल बी डिफरेंट इमेजेस इन बी, और यहाँ पर 4 प्री इमेज के लिए कोई इमेज यहाँ पर नहीं है। सो दैट मीन्स ये ऑन 1 1 फंक्शन नहीं हो रहा है। सो यहाँ पर हो गया दैट मीन्स एन ए इक्वल टू एन बी ऑलवेज। सो इफ एन ए इक्वल टू एन बी एंड इट्स एन 1 1 फंक्शन देन डेफिनेटली इट विल बी एन ऑन टू फंक्शन। क्योंकि अगर देखिए दो एलिमेंट अगर सेम हो गया, यहाँ पर सेम हो गया, अगर यहाँ पर 1 1 कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है इसका मतलब ऑन टू भी सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ऑन टू का तो कंडीशन ही होता है सिर्फ बी इमेज का हर एक एलिमेंट, बी का हर एक एलिमेंट कवर अप करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर तो कवर अप हो ही गया, तो इसका मतलब अगर आप यहाँ पर दो एलिमेंट सेम है, दोनों सेट का अगर एलिमेंट सेम है और वहाँ पर आप 1 1 कंडीशन प्रूफ कर चुके हैं तो इसका मतलब आपको ऑन टू प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली इट विल बी एन ऑन टू फंक्शन। ओके, आई होप इसके बाद आपको फंक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम फिर से अराइज करे तो मुझसे कांटेक्ट कीजिए, और कांटेक्ट करने के लिए वीडियो के कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं या आप टेलीग्राम लिंक में जाके भी हमको SMS कर सकते हैं।